Record. Good morning, everyone. Good Thank morning, you. ma'am. Good morning. Thank you, everyone, for coming in the morning and joining the session. I and Priya will be taking the session today. So over to you, Priya. Yeah. Good morning, everyone. We'll be taking the session on behalf of Deepthi ma'am today. I'll be taking the first part, and Poonam ma'am will be taking the next part, the creative mind, creative visualization. I'm sorry. For all those who have joined in new and who all are new in the sessions, so I would like to say that we are reading two books here. The first one is The Magic by Rhonda Byrne, and the second one is The Creative Visualization by Shakti Gawain. Okay, first book we always read the magic book, and second will for the creative visualization follows that. So yeah, in the magic book that we are studying right now, we have studied about ma'am. Do I share the book with like okay? I'm Yes, sharing the Priya. screen with you. हाँ जी, आप ये कर दीजिए. Okay. So yeah. Today we'll be reading about the magic formula. So now the magic word is quite mystical for all of us, but it is very definite, you know. Magic is nothing like कि वो आप कुछ magical है, कुछ illogical चीज है. It's nothing like that. Magic, the life of magic means that everything in your life goes smooth. You attain your dreams. Each and every relation of your life is fulfilling. Your health is excellent. You're enjoying the best of your health. The health obviously includes your physical health and emotional health and your mental health and everything. Fine. You are getting whatever you want, whatever the wildest dreams of yours are getting true. That is the magical life. So, to get the magical life, what we have studied right now, that we have to follow two beautiful words. Obviously, thank you. So thank you has to be incorporated with our life, and that's very easy to do that. अभी तक हमने ये भी पढ़ लिया है लास्ट चैप्टर्स में कि किस तरह से जो ब्यूटीफुल स्कॉलर्स हुए हैं, जो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हुए हैं हमारे हमसे पहले, हम तो इंटेलिजेंट हैं, हमसे पहले जो इंटेलिजेंट पीपल हुए हैं लाइक आइंस्टीन, न्यूटन, ब्लेक, शेक्सपियर एंड ये सारे के सारे जो पीपल हैं, they have said that the gratitude is the most important ingredient of your life. This is the only way. Actually, there are a lot of other ways also, but this is the most important, easy, and a mystical way to achieve your dreams. Okay, so we have studied about the spiritual leaders also. Spiritual leaders ने भी हमारे बोला हुआ है, चाहे वो बुद्धा हैं, चाहे वो कृष्णा है, चाहे वो हमारे मोहम्मद हैं, सबने बोला हुआ है, क्राइस्ट ने बोला हुआ है कि किस तरह से मैजिक जो है, ग्रैटिट्यूड का मैजिक किस तरह से काम करता है हमारे लाइफ में. व्हाट इट सेज कि आप जो दोगे आपको वो ही मिलेगा. इफ यू गिव लव यू विल रिसीव लव. इफ यू गिव ग्रैटिट्यूड you will receive gratitude in multiple forms in the all way of your life, right? So your life is going to be magical by following this gratitude. So we'll be studying about the magic formula today. Neeti will be reading today, right? So Neeti, Yeah, yes, can you see this? yeah. I'll start. Just a moment. I'm looking for my specs. Yeah, thank you. Okay, good morning. The magic formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. By, oh, the screen is gone. Wait. By Ibn Khaldun al-Muqaddimah by 1332 to 1406, scholar and statesman. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude words works in the same way. And first,
you must say the magic words, thank you. Can you just, excuse me, can I just get my book? Because, the way ma'am does it is a little different. So I'll just open the book. Do I zoom a bit more? Okay, I'll zoom a bit more then. Magic Just a formula. Yeah, sorry. Is it okay now, Neeti? Yeah, let me just. Okay, let me explain then the thing, the first Yeah. part of the magic formula. So the magic formula का मतलब यहाँ पर ये है that if we are reading something, if we are studying something, then the key is to practice that. It's nothing like that कि हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग घर पे जाके भूल जाएं, हम लोग जैसे अपने डेली रूटीन में आए हम लोग भूल जाएं, वो करेंगे तो फिर नहीं होगा. We have to practice what we are reading, what we are studying. इतना जो एफर्ट हम लोग अपना यहाँ पर लगाते हैं, हम लोग अपने बहुत ही कीमती 1 घंटा जो हम लोग इन बुक्स को देते हैं पढ़ने के लिए. So the magic lies in that when we'll start following those practices, right? We have to incorporate these 2 words, thank you, into our daily life. Okay, thank you को हर किसी चीज में हम लोगों को प्रीफिक्स कर देना है. प्रीफिक्स भी कर दो, पोस्ट फिक्स भी कर दो. काम होने से पहले थैंक यू, होने के बाद थैंक यू. फिर आप देखिए किस तरह से हमारी जो लेवल है ना, वी आर ऑल एनर्जीज एट द एंड ऑफ द डे, वी आर ऑल एनर्जीज, राइट? मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी, हम सभी की सभी एक एनर्जेटिक बॉडी है. अगर हम साइंटिफिक वे में हम लोग सोचे ना, सो वी आर ऑल बॉडीज, बंडल ऑफ एनर्जीज, है ना? सो ये जो एनर्जी है ना हमारी, हम लोग नेगेटिव जोन में जाके हम लोग उसको काम नहीं करता है वो हमारा ना, फिर वो हम लोग उसको डिफेम कर देते हैं. हम लोगों ने क्या करना है ना, अपनी एनर्जी को रेज्ड रखनी है, सो दैट हम लोग ऐसे एनर्जी के साथ हम लोग अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाए. ड्रीम्स अचीव करना इज मतलब इट्स जस्ट इट्स लाइक अ गोल, यू आर गोइंग समवेयर, बट इफ यू डू नॉट नो इन द डायरेक्शन टू विच वी शुड गो, देन यू गेट लॉस्ट इन द पाथ, राइट? सो फॉर दैट आपको ड्रीम जरूरी है, सपने जरूरी है, सपने देखना जरूरी है. और उस सपने को अगर हम लोग धीरे धीरे करके हासिल करते जाएंगे, तो विल गेट मोटिवेटेड टू डू मोर इन द लाइफ. Because of that, gratitude is important, and gratitude brings you closer and you get your dreams very frequently. There is no time and space reality actually. बहुत कम टाइम में भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो. और अगर ड्रीम्स मान लो हमारे लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आई, तो हम लोगों को सिचुएशन से अपने आप को उबारने का हम लोगों को तरीका मिल जाता है बाय फॉलोइंग दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस. हाँ, सो नीति, इज इट ओके नाउ फॉर यू टू रीड? Yeah. Okay. Okay. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the 2 words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The magic formula. Number 1, deliberately think and say the magic words, thank you. Number 2, the more you deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. Number 3, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So the ultimate aim is practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your Just a life moment. will Neeti, change. just a moment. Huh? Yeah. Neeti, just a moment. We'll explain Yeah. it a bit. So here Rhonda Byrne says that हम लोगों को gratitude को deliberately बोलना पड़ेगा, thank you को बोलना पड़ेगा. हमको अपने लाइफ में
मैजिक लाने के लिए वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड इनटू आवर लाइफ. ये जो ग्रैटिट्यूड के वर्ड्स है ना, थैंक यू, दिस इज द ब्रिज फ्रॉम नाउ टू योर फ्यूचर, from now, the moment now, to the dreams that you want to achieve. Gratitude is the only bridge for that, right? So उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थैंक यू बोलना पड़ेगा. किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपने थैंक यू बोला, वो तो ठीक है, वो हम लोग बोल देते हैं. लेकिन हम लोगों को किस तरह से नेगेटिव सिचुएशन में भी अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज्ड रखना है, हम लोगों को अच्छे फीलिंग जोन में रहना है, उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा. So that we get our dreams in the faster way, in the fastest way actually. So उसके लिए क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि हम लोगों को डेलिब्रेटली थैंक यू बोलना पड़ेगा. डेलिब्रेट वर्ड्स को, ये थैंक यू वर्ड को हम लोग जितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ हमारी मैजिकल होती जाएंगी. बिकॉज ग्रैटिट्यूड के बाद क्या होता है ना, ग्रैटिट्यूड जब हम लोग करते हैं तो हमारा माइंड, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, हमारा माइंड और अच्छा थैंक यू जोन में आ जाता है. यू नो व्हेन वी आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर समथिंग, किसी ने आपको कुछ दिया, आपने उसके लिए थैंक यू फील किया, आप ये देखोगे कि आप जब ये एयर में सांस ले रहे हो, यू आर एबल टू ब्रीथ एंड यू नीड टू बी थैंकफुल फॉर दैट. यू जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ इन दिस रूम वेयरएवर यू आर सिटिंग, यू नो, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके बिना आपका लाइफ पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट इतना लग्जूरियस नहीं होगा जितना अभी है. सो वी हैव टू फील थैंक यू फॉर दैट, वी हैव टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट. सो वो जो ग्रेटफुलनेस का फीलिंग है वो हमारी फ्रिक्वेंसी को रेज्ड रखेगा. सो दैट्स व्हाट रोंडा बर्न इज सेइंग. आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आते होंगे, आते भी हैं, जिसमें आपका थैंक यू कहने का मन नहीं करेगा. अब किसी ने मुझे डांटा तो मुझे, मेरे मन में उसके लिए थैंक यू नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो यही तो चेंज करना है हमने अपने आप में, अपने कैरेक्टर में, कि जब कोई हमें कुछ नेगेटिव बात भी बोले तो भी हम थोड़ी देर तक अगर लो जोन में जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद हमने फटाफट से एलिवेटर पकड़ के हमने ऊपर अपने जोन पे आ जाना है, पॉजिटिव जोन में आ जाना है. बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू रीच टू आवर गोल्स, यू नो. तो यही कहते हैं कि आपको मतलब जानबूझ के जबरदस्ती अपने आप को बोलना पड़ेगा थैंक यू. किसी भी सिचुएशन में आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आप ये सोचो, अगर आपको लगे कि ये एयर कंडीशन को थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, या हमें प्लांट्स के लिए तो चलो हमने फिर भी बहुत पढ़ा है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ट्रीज आर यूजफुल टू अस, बट वी डू नॉट नो हाउ दिस मैन मेड थिंग्स आर आल्सो यूजफुल टू अस, राइट? तो हम लोगों को ये फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी. उसके जनरेट करने के लिए आपको एक बार अपना पंखा और एसी बंद करके बैठ जाओ, अभी अगर नॉर्थ इंडिया में हो कहीं पर, तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच ग्रैटिट्यूड वी शुड पे टू दिस इलेक्ट्रिक सप्लाई, टू द fans that is flowing over your head, that is in the ceiling, the AC, everything. You are writing with a pen, then what is the significance of that pen? You are using a phone to get into the network now. So what is the significance of that? So there are zillions of things to be grateful for. अब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि जीसस क्या कहते थे कि हेवन से लेके अर्थ तक जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं, आप सोच सकते हो, whatever has got name, we should be thankful for that. कुछ भी हो, we cannot think and imagine a life without that. So we have to be thankful for that. नहीं मन से आएगा तो जैसे मैंने कहा कि उसको आप उस चीज के बिना अपने लाइफ को सपोज कर लो तो आ जाएगा आपके मन में ग्रेटिट्यूड, है ना. अगर आपको अपनी मॉम पे गुस्सा आ रहा है तो जस्ट थिंक दैट आप होते ही नहीं अगर आपकी मॉम नहीं होती तो. सो लाइक दैट वी हैव टू, हमें को ना मतलब हैमर कर करके हमें ये ग्रेटिट्यूड की जो पार्ट है ना, हमें एक ब्यूटीफुल शेप दे रहा है, एक बहुत अच्छा इंसान बना रहा है ना. दोज वी आर all of those we are who are in this journey from quite some time, हम लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत आ चुका है, बट स्टिल अब दीप्ति मैम कहती हैं कि उनके लाइफ में ना ग्रेटिट्यूड खाली 5% ही आया है. तो मैं सोचती हूँ मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर रीडिंग दिस बुक. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग. We have to incorporate gratitude into our life wherever we do not like. हम लोगों को कहीं लगे भी यहाँ पर क्या थैंक यू बोलने की जरूरत है, वहां पर क्वेश्चन नहीं करना, जस्ट गो विद द फ्लो. लाइफ इज दिस. हर सिचुएशन में हम लोगों को थैंक यू बोलना है, तभी हम लोगों के अंदर वो रेज्ड एनर्जी आएगी. वो रेज्ड एनर्जी, वो हम लोग ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी में जब रहेंगे, हम उस डिजायर के लिए काम करेंगे, उस डिजायर के लिए एक्शन लेंगे, and that action will get converted into the dream of yours. Okay, so this is the thing. So ये gratitude का feeling हमारे अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, because that will bring you so much closer to your dreams.
और वही है ना, लैडर है, ये एक सीढ़ी है आपको अपने ड्रीम्स तक पहुंचाने के लिए, पहुंचने के लिए। जैसे न्यूटन अपने लॉ में क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ एवरी लॉ, एवरीथिंग हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, का मतलब क्या था, वही यही तो है कि आप जो दोगे आपको वही उसका कई गुना ज्यादा आपको ऑपोजिट वहां से आपको मिलेगा। यू गिव लव, यू रिसीव लव इक्वली और मोर देन दैट, मल्टीप्लाइड, है ना। उस थ्योरी पे ये बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा का पूरा। But one very important thing that I would like to say is law of attraction will not actually alone work without gratitude. It works together, you know. We have to amalgamate the law of attraction practices and the gratitude practices. The affirmations, whatever we say or give to ourselves, कि I am this, I am powerful, I am beautiful, I am wonderful, ये काम करेंगी। लेकिन अगर आप इसके साथ अपना ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस अगर जोड़ देते हो तो इमेंसली ब्यूटिफुली ये काम करेगी, बहुत जल्दी काम करेगी। बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम लोग ये बुक पहले पढ़ते हैं, सो दैट ग्रैटिट्यूड बिकम्स आवर वे ऑफ लाइफ, देन वी गो टू अदर बुक्स, है ना। दिस इज द बुक विच इज शेपिंग अस, हमें शेप कर रही है, हमें एक बहुत अच्छा इंसान बना रही है, हमें वो फीलिंग जोन में ला रही है, सो दैट वी गेट आवर ड्रीम्स। और उसके बाद हम लोग वो अफर्मेशंस करते हैं तो वो एडेड एडवांटेज हो जाता है। सो ये दोनों दोनों जो ना एक पैरेलल चलते हैं, ये भी करना है हमने, वो भी करना है, राइट। सो इस तरह से हमने इसको करना है। एंड वेयर वर वी नीति हियर, व्हेन यू Yeah, डिस्कवर हाउ लिटिल। yeah. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. Very important point this is that if you do a little, you will get a little. Obviously, it is directly proportional to that. The one physics के जो भी हमारे students हैं या हम लोग जो पढ़े हुए हैं या पहले वाले भी, हमने 10th तक तो पढ़ा ही है साइंस, we all know that what directly proportional means. आप जितना gratitude करोगे वो directly proportional है कि जितना आपको love, आपकी dreams आप तक आएंगी। थोड़ा करेंगे तो थोड़ा आएगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगा। हम तो बहुत ज्यादा करेंगे ताकि हमारे पास बहुत ज्यादा आए। एंड तो हम लोगों ने जो ड्रीम करना है ना, हमारे जो ड्रीम्स है, वाइल्डेस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स, बिगेस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स गेट एक्चुअलाइज्ड, एक्चुअली इट गेट्स एक्चुअलाइज्ड। आप ये देखो कि मतलब हम लोग जो भी सोचते हैं ना, अगर मान लीजिए जस्ट सपोज दिस बुक इज नॉट देयर इन अ लाइफ, दिस द मैजिकल बुक, व्हाट इज दिस मैजिकल बुक? This book only, the book written by Rhonda Byrne. This is the magical book that we are studying right now. सो ये हमारे लाइफ में मैजिक ला रहा है, लेकिन जस्ट सपोज दिस बुक इज नॉट देयर, उसके बावजूद भी हम जो सोचते हैं हम वैसा बनते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमें वैसा बनाते हैं। अगर आप अपने पास्ट लाइफ के साथ अगर आप अपने को कोरिलेट करके देखोगे ना, तो देयर वुड बी मेनी थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू हैव अचीव्ड बिकॉज यू ड्रीम्ड ऑफ दैट, right? So what we are doing right now, we are just creating the life that we want, because वैसे भी तो वो हो रहा है ना, वैसे भी तो whatever we are thinking consciously or unconsciously, it's getting actualized in our life because we are acting like that. आप जैसा सोचते हो आप वैसे कर्म करते हो, आप जैसे कर्म करते हो वैसा ही आपको नतीजा मिलता है उसका। सो हमने क्या करना, ये वैसे भी हो रहा था, अब हमने क्या करना है ना कि ये मैजिकल बुक पढ़ के, ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करके हमने क्या करना है, हम जैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, वो लाइफ हम अपने हाथों से बनाएंगे और जरूर बनेगा। वी जस्ट हैव टू कीप आवर फेथ अलाइव। फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Number one thing is the faith on the law of universe, the law of attraction, and the most important thing is love and gratitude and the magical word that is thank you. बहुत छोटा है, 2 अक्षरों का शब्द है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मैजिकल बुक ये हमारा है, या सो नाउ विल बी Yeah. हैविंग द पिक्चर। सो दिस इज द मैजिकल बुक जो कि एक काउच के ऊपर रखी हुई है, और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स है।
इसमें आपका जो काउच के ऊपर जो बुक्स हैं उसके ऊपर ये ग्रैटिट्यूड के ग्लिटर्स हैं. दैट मीन्स दिस बुक इज मैजिकल. एंड हम जब इस बुक को पढ़ते हैं, इसको जब हम अपना डेली रूटीन बना लेंगे, हम लोग जब इसको ये आपको ये ग्लोब भी दिख रहा है ना इसके साथ में, इसका मतलब ये है कि यू कैन विन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. जो चाहते हो, अगर आपका ड्रीम इतना बड़ा हो कि वो ग्लोब जैसा हो, यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, जस्ट ड्रीम इट. Just dream it. आप बिलियनर बनना चाहते हो, just dream it. You want to get the desired car that you want, a Ferrari, just suppose, you can get even that. ठीक है. आपका जो ड्रीम है, हमारा जो ड्रीम है, it's nothing in front of this entire cosmos, you know. आप ये देखो ना कि एक रॉन्डा बर्न की एक जो पावर बुक है ना, उसमें है कि आप एक बहुत बड़ा सा सर्कल अगर बनाओ, जितना बड़ा आप बनाना सको, बनाना चाहो, आप मान लीजिए एक चार्ट पेपर में आपने बनाया एक सर्कल, या मान लीजिए आपने एक A4 साइज के पेपर में बनाया, उसके बीच में आप एक डॉट लगा दो, बीच में या कहीं भी एक डॉट लगा दो. सो दैट यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स इतना विशाल है, इतना ज्यादा बड़ा है, वो इतनी सारी चीजें हमें दे सकता है. हमारे बिगेस्ट ड्रीम्स यूनिवर्स के लिए बस एक डॉट के समान है ना. तो ये चीजें सब कुछ अचीवेबल है. हम लोगों ने क्या करना है, उसको अचीव करने के लिए जो ये प्रैक्टिसेस बता रहे हैं, जैसी लाइफ बता रहे हैं, उसको जीना है. हम लोगों ने कोई शॉर्टकट, ये जो है ना, मुझे लगता है ये हमारा सबसे अच्छा शॉर्टकट है टू अचीव द ड्रीम्स. लेकिन जब हम लोग थक जाते हैं ना, हमको लगता है क्या प्रैक्टिस करना, तो उस टाइम हम लोग गड़बड़ करते हैं. वो हमारी बहुत बड़ी गलती होती है. प्रैक्टिसिंग इज द की. एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इज द की. सो हियर we have to practice the all the practices given in the book, you know. उसके बाद ही हम लोग अपने आप को ऐसी जगह पे पाएंगे जो हमारी ड्रीम लाइफ होगी. यस नीति, प्लीज कंटिन्यू. Yeah, the quote is, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. By John F. Kennedy from 1917 to 1963, 35th President of the United States. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. यस नीति, 1 सेकेंड. Yeah. सो ये जॉन एफ कैनेडी का जो कोट है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है. जो मैं आपको पहले बात बोल रही थी, वो उसी चीज को अंडरलाइन कर रहा है कि नॉलेज इज, ठीक है, नॉलेज आपको हो गया है, यू आर गेटिंग द नॉलेज, बट वी नीड टू प्रैक्टिस इट. खाली बोलने से काम नहीं चलेगा कि बोल दिया और हो गया. जो प्रैक्टिस इसमें दी जाएंगी, जो प्रैक्टिस हम लोगों को फॉलो करनी है, ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिस लिख दी और हो गया. हम लोगों को अपने व्यवहार आचार में वो लाना है. हम लोगों ने वैसा कैरेक्टर अपना बिल्ड करना है, वो ग्रेटिट्यूड वाला, और वो धीरे धीरे करके हो जाएगा. नहीं, एक बार की प्रैक्टिस में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, दोबारा से हम लोग ये बुक करते हैं, दोबारा से हो जाएगा. बट हम लोगों को ये अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है. सो दिस पर्टिकुलर बुक, इसके बारे में आपको पहले बता दूं थोड़ा सा कि ये एक 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस या असाइनमेंट्स होते हैं इसमें. तो 28 डेज का है. ये जो बुक हमारी 28 डेज में ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है. सारे चैप्टर्स, सारी प्रैक्टिसेस पूरी हो जाती है. इसके जो पहले 12 दिन है, डे 1 से लेके डे 12 तक, ये हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट को ठीक करने के लिए होते हैं. हमारे पास्ट और प्रेजेंट में जो मेंटल ब्लॉक्स है ना, वो हमारे लाइफ में आके एक डेटरेंट बन जाते हैं, एक रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं.
तो रोंडा बर्न हमें बहुत ही ब्यूटीफुली सिखाएंगी कि किस तरह से हमारे जो वो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको हमने क्लियर करना है, और किस तरह से हमारे पास्ट में जो चीजें हैं हमने उनको थैंक यू बोलना है, और प्रेजेंट में जो हमारे पास है हमने उनके लिए थैंक यू बोलना है। पास्ट प्रेजेंट में हमारे पास जो भी मनी जो है, हमारे पास जो भी चीजें हैं, चाहे आपके पास आज एक प्लेट चम्मच ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास एक स्कूटी क्यों ना हो, लेकिन स्टिल आपने उसके लिए थैंक यू फील करना है। जब बारिश में गए हम लोग भीग गए तो हम सोचते हैं कि यार कार होती तो अच्छा होता, क्या स्कूटी में भीग गए, लेकिन तब हम उनको सोचेंगे जिनके पास ये स्कूटी भी नहीं है, राइट। कम से कम ये स्कूटी से आप अपने डेस्टिनेशन तक थोड़ा जल्दी तो पहुंच पा रहे हो, है ना, लाइक दैट। मनी के लिए थैंक यू। हमारे पास हो सकता है आज बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, हो सकता है आज हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज है बस, लेकिन जब हम इन 10,000 रुपीज के लिए ग्रेटफुल फील करेंगे, तभी वो 10,000 जो है आपके 10 लाख और 10 करोड़ कब बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू टेक माई वर्ड्स इन दिस, एक्चुअली इट गेट्स कन्वर्टेड, यू नो। तो इस चीज के लिए हम लोग इस चीज की प्रैक्टिसेस हम लोग करेंगे, ये हमारी बिलीफ को और अफर्म करेगा, हम लोगों को उस जोन में लाएगा। उसके बाद आती है रिलेशनशिप्स की, किस तरह से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं जो भी हमारे पास, उन सब के लिए कैसे हमने थैंकफुल होना है। हर एक रिलेशनशिप हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, इस तरह से हमारे सारे की सारी चीजें जो लाइफ की डिफरेंट डोमेन्स की जो चीजें हैं ना, वो आएंगी 12 दिनों तक। उसके बाद हम लोग उसकी उनकी प्रैक्टिसेस करके हम अपने प्रेजेंट और पास्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद 13th डे से लेके 22nd डे तक हम लोग क्या करेंगे, अपने ड्रीम्स पे काम करेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो हम लोग अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं ना, हम अपने ड्रीम्स पे काम करेंगे। वो ड्रीम्स पे काम करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस है वो हम लोग करेंगे। उसके बाद जो रेस्ट आ जाता है, हमने अपने पास्ट को थैंक यू बोल दिया, प्रेजेंट को थैंक यू बोल दिया, अपनी ड्रीम लाइफ के लिए हमने प्रैक्टिसेस कर ली, ये सब हम लोगों को मिला है ना। तो उसके बाद के चैप्टर में 23rd चैप्टर से लेके 27th चैप्टर तक हम लोग क्या करेंगे, देंगे। हम लोग कैसे, हम लोग सोसाइटी को देंगे, वट एवर वी रिसीव, यू नो, यू हैव टू गिव ऑल्सो। नॉलेज हमेशा बांटने से बनता है ना। हम लोग जितना बांटेंगे, जो हमारे पास है, जो नॉलेज है, जो हमारे पास मैजिकल पावर्स आ जाएंगी, हम लोग उनको दुनिया को ठीक करने के लिए या दुनिया का भला करने के लिए यूज करेंगे, है ना। क्योंकि ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, इस बात को आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से सोचो कि इट वर्क्स लाइफ वर्ड्स। अगर हम ये सोचेंगे उसका बुरा हो जाए, उसका तो ये घाटा हो जाए, वो नहीं सोचना है हमने, वो नहीं होगा पूरा कर, वो आपको बिल्कुल लो जोन में ला देगा। वो एनवी का फीलिंग, वो जेलसी, है ना, वो हेट्रेड, वो हमें नीचे ला देगा, वो हमारी ड्रीम लाइफ को नहीं हम लोग उसको अटेन कर पाएंगे उसको, अगर उस चीज को हम फॉलो करते हैं। सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस आर ऑलवेज लाइफ वर्ड्स। हमें पॉजिटिविटी के साथ सोचना है ना, तब हम लोग जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग 26 डे तक हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं। उसके बाद 27th डे में आएगा कि हम किस तरह से सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस करेंगे, अपने आप को प्यार देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बनाना है। बहुत ब्यूटीफुली, आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये प्रैक्टिसेस करने में। कभी अगर थकान भी हुई ना, तो अपने ड्रीम्स को देख लेना। कभी ये प्रैक्टिसेस भारी लगे ना, तो अपना ड्रीम लिस्ट जो बनाओगे ना उसको निकाल कर देखना, फिर आपको भारी नहीं लगेगा। आपको लगेगा दिस इज द ओनली वे टू अचीव इट ना, तो हम लोग विल गो फॉरवर्ड विद दैट, है ना। सो या uh, Yeah, yeah, the yes, practice. the practices are designed to be. Yeah, the practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you've dreamed of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you've received, the magic won't work and you won't receive more.
These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake. And I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve, and you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practices a week, the only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. Yes, it's important here कि यहाँ पर हम लोगों मैंने आपको practices के बारे में पहले ही बता दिया है कैसे करनी है. Let's not go into that because we are going to read about the practices from tomorrow only. So what important is the thing which is important is we have to make gratitude portable. हम लोगों के पास ये बहाना नहीं है कि आज मैं घर पे नहीं थी तो मेरी practice नहीं हो पाई. रॉन्डा बन ने प्रैक्टिसेस इतनी अच्छे से डिजाइन कर रखी है ना कि आप कहीं पर भी हो जहां भी हो इन प्रैक्टिसेस को आराम से कर सकते हो. ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेक्यूटिवली रोज की प्रैक्टिसेस रोज कर लो, कोई टाइम नहीं लगता, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा ये. और फिर रॉन्डा वन बहुत जेनरस है, हमें हमेशा एक लाइफलाइन दे देती हैं. उन्होंने ये कहा है अगर आपकी एक दिन की प्रैक्टिस छूट जाती है तो आप क्या करो, पिछले 3 दिनों की प्रैक्टिस करो प्लस उस दिन की करो. अगर जैसे मान लीजिए मैं 4th डे में हूँ और मेरी पहले की 3 प्रैक्टिसेस छूट चुकी हैं तो मैं क्या करूंगी ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों प्रैक्टिस को करूंगी प्लस आज का प्रैक्टिस करूंगी. तो हमारे ऊपर ही बर्डन बढ़ेगा. तो इसलिए अच्छा तो यही है कि हम लोग डेली के प्रैक्टिसेस डेली करें. ये पता है डेली करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा मोमेंटम जो है ना वो टूट जाता है फिर. अब जैसे आप लोगों ने मान लीजिए कहीं जाना हो और बीच में अब स्पीड ब्रेकर्स आ जाए ना, वो स्पीड ब्रेकर्स जो है वो नहीं आने चाहिए. वो स्पीड ब्रेकर्स क्या करेंगे, हमारी जो जर्नी को और लॉन्ग कर देंगे. हमने क्या करना है, अपने ड्रीम्स तक जल्दी पहुंचना है. तो हमने जैसे रोंडा बन बोलती है फर्स्ट में हमने उसी चीज को वैसे करके फॉलो करते हुए जाना है ना. तो कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, हमने ये प्रैक्टिसेस को करना है सो दैट हमारा जो एक मोमेंटम जो है वो हमारी लाइफ में वो बना रहे. अब रोंडा बन ने हमें ये बुक्स के चैप्टर्स में हमें बताया कि किस तरह से हम लोग, जैसे हम लोग किसान जब एक पौधा बोता है ना तो पहले वो टिलिंग करता है, वो सॉइल को प्रिपेयर करता है ना. उसके बाद उसमें अपना पौधा लगाता है, उसके बाद उसको सींचता है. फिर उसी तरीके से हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को ऐसे ही करना है. ठीक है, तो अब हम लोगों ने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है. अब रोंडा बन हमें बोलेंगे कि किस तरह से आपने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है. सो ये हाँ,
मैम कहाँ पर थे नीति आप लोग? वी डोंट वांट टू फॉलो. Yeah, after the नहीं ये तो कर 28. दिया था. ओके, Uh, आफ्टर द 28. yeah. Once you've completed the 28 magical practices, you can use particular practices to increase the magic where or when you have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship. Or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open to is the one you attracted. So it's a perfect one to do that day. At the end of the 28 magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. What are Yes, your following dreams? just a moment. Following the gratitude practices will definitely make our life spectacular. देखने वाला होगा कि लोग देख के बोलेंगे कि wow, what a life you have, and everyone would like to have will like draw the attention towards you, and आपकी लाइफ जैसी होगी सब वैसे ही लाइफ पाना चाहेंगे. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से करें. We don't have to give it a chance कि हम लोग इन प्रैक्टिसेस को भूल जाएं या ना करें. वो बात के लिए आफ्टर 28 डेज जो होगा हमने सभी ने हमने इस हमने रेजोल्यूशन के साथ हम लोगों ने ये करा है ये बुक को कि ताकि हम ये सारी प्रैक्टिस अपने आप पूरी कर सकें, है ना. तो वी डू नॉट वांट टू गिव आवरसेल्व्स अ चांस कि हम लोग ये भूल जाएं. और क्या होगा उसके बाद, भूलने के बाद किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो हम लोग आगे करते जाएंगे तो हम लोग पता चलता जाएगा हमें कि कैसे करनी है. ठीक है, तो हम लोगों ने पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के लिए करना हो वो सब अभी अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट. अभी हम लोग अपने ड्रीम्स के बारे में करते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ड्रीम्स को लिखने का दिन है आज. आज हमने अपनी ड्रीम्स को लिखना है, जो भी हमारी ड्रीम्स है, बड़ी छोटी सारी ड्रीम्स है. तो मेनली आज क्या करना है पढ़ हम लेते हैं. मैं आपको पहले बता रही हूँ थोड़ा सा कि हम लोगों ने अपनी बकेट लिस्ट बनानी है. तो इट वोंट बी अ फॉर्मल लिस्ट कि हम लोग जैसे हम फॉर्मल लिस्ट बनाते हैं ना वो हम लोग बाद में करेंगे. अभी हम लोग क्या है जितने भी डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं हमारे, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल्स हो, चाहे वो हम लोगों ने 1 महीने के अंदर अचीव करना है, चाहे वो हमने 10 महीने के अंदर करना है, हम लोगों को पता है. हम लोग वो लिस्ट बनाएंगे, एक एक रफ सा लिस्ट बनाएंगे जैसे हम लोग शॉपिंग जाते हैं तब बनाते हैं. सो विल राइट कि जैसे कि आपने जो भी मान लीजिए आपको चाहिए, आप चाहते हो कि आपका एडमिशन कोई अच्छे कॉलेज में हो जाए, तो आप उसको सिर्फ ऐसा लिखोगे टू गेट एडमिशन इन दिस एंड दिस कॉलेज. मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर दैट. ठीक है, और इस चीज का अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू जॉट डाउन द ड्रीम्स. पेन एंड पेपर में या अपने कंप्यूटर में हमने एक लिस्ट बनानी है. हमने सोचना नहीं है, हमने उसको पेपर पे उतारना है. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप अब ड्रीम करना शुरू कर दो कि क्या आपके ड्रीम्स हैं. जो भी ड्रीम्स आपके हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल. मैम ने हमें एक दे भी तो रखा है ना अफर्मेशन की एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी. राइट, सो वो चीज को याद रखते हुए डिजायर बिग, ड्रीम बिग, and definitely you will achieve that. So yes ma'am, please read. Yeah. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health,
and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, add then just and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you've never been on. Thank you. Yes. So, yeah, thank you. Thank you so much, Niti, for reading so beautifully. So here we will write, and actually we are it's quite an overstretched time now because dreams जब हमने लिखना होता है ना वो वाला दिन हमेशा हमारा थोड़ा सा stretched हो जाता है मैजिक बुक का. I'm sorry पूनम मैम for that. सो यहाँ पर आज हम लोगों ने जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है उसमें हमने जो मैंने बताया आपको एक बकेट लिस्ट होना चाहिए आपका जिस तरह से आप अपना आगे की जिंदगी चाहते हैं वो उस तरह से होगा एंड यू हैव टू राइट कि व्हाट यू वांट एक्चुअली. अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए
आपको कार चाहिए, आपको कोई डिजायर है कि कार आपको चाहिए, तो वो पर्टिकुलर कार का नाम लिखोगे कि आपको ऐसा चाहिए, इस कलर का चाहिए, सेडान चाहिए, एसयूवी चाहिए, क्या चाहिए वो आप वैसे लिखोगे। अगर आपके बच्चे को किसी चीज में, अगर मैम ये स्पेसिफिकली बोलती हैं कि यू फोकस ऑन योर ड्रीम्स फर्स्ट, बट सिंस आवर किड्स आर मतलब हमारे साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं, हमारे लाइफ होती है हमारे किड्स की, हम लोग उनकी विशेष को पहले रखते हैं। बट मैम ऐसे कहती हैं कि क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों ने उस पर डिपेंड नहीं करना है, हमने उनकी ड्रीम्स पे नहीं अपनी ड्रीम्स पे फोकस करना है अभी फॉर द मोमेंट। जो हमारे जो नए प्रैक्टिशनर्स है ना, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी, मैम हमेशा बोलती हैं, आज मैम नहीं है यहाँ पर हमारे सेशन में शायद, तो वो बोलती कि वो एक बहुत बड़ी हिदायत होती है ये, कि हम लोगों ने अपने लिए पहले सोचना। अगर हम खुद ठीक होंगे ना, तभी हमारा ऑरा ही बाकी सब चीज को ठीक कर देगा हमारी लाइफ में। तो ये है। तो हम सब ने क्या करना है ना, लिस्ट बनानी है, मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी कि इस तरह से हमने लिस्ट बनानी है। तो उस लिस्ट में क्या करना है ना, आपने जितने भी हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स है उनको हमने लिस्ट करना है। एक इस तरह से लिखना है, जैसे आप मान लो यूरोप का ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवल यूरोप, इतना छोटा छोटा आप लिखोगे। राइट एज मेनी एज यू वांट, 50 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, कितने भी चाहिए। आपको अपने हेयर ब्यूटीफुल करने हैं, सो फॉर माई ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है, टू गेट लॉन्ग सिल्की ब्लैक हेयर, ये लिख दिया आपने। आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी, कोई आपको पर्टिकुलर हेल्थ चैलेंज है, किडनीज का चैलेंज है, तो आप लिखोगे टू गेट परफेक्टली वर्किंग किडनीज, राइट। इस तरह से हम लोगों ने, रौंडा बन ने बहुत इजी तरीके से ये क्लासिफाई कर दिया है कि हम अपने हेल्थ के लिए, हम अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, जिस भी पर्टिकुलर हेड में हम लोगों को चाहिए, हमारा जो पूरा का पूरा लाइफ है ना, इन डोमेन्स में डिवाइडेड होता है ना, तो हम लोगों ने उनको ध्यान में रखते हुए, वरना ध्यान में नहीं आएगा आप लोगों को क्या लिखना है क्या नहीं, तो वो देख लेना कि हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो हमारे लाइफ में, कोई भी किसी भी चीज का डिजायर करना ना गलत नहीं है, किसी भी चीज का हम डिजायर कर सकते हैं। तो उन सब चीजों का एक लिस्ट में हम लोगों ने उनको जस्ट लिस्ट करना है। उसके बाद हमने भूल जाना है उसको, आज लिखकर हमने उसको छोड़ देना है। फिर हम लोग 13th डे इस लिस्ट को दोबारा से उठा के इसकी फेयर लिस्ट बनाएंगे। आज हमने एक रफ लिस्ट ही बनानी है, इस तरीके से बनानी है कि हमने लिखना है टू गेट दिस, टू गेट दैट, ठीक है, इस तरह से। आई वॉन्ट टू भी लिख सकते हो, या आई वॉन्ट टू नहीं लिखना है तो जस्ट एक फेयर, एक अनफेयर सी एक रफ लिस्ट हम लोग बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। सो या और जो भी रिलेशनशिप आपने, मान लीजिए आपके रिलेशनशिप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अच्छे करने हैं, वो लिख सकते हो। नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, टू गेट 100% परफेक्ट रिलेशनशिप विद एवरी वन इन माई लाइफ, वो लिख सकते हो। यू वॉन्ट टू गेट द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एवर, वो लिख सकते हो। टू गेट टू लाइफ, इस तरह से हमने लिखना है सारे के सारे लिस्ट को। और हम लोगों ने, आपको पता ही है कि गोल्स हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू गेट द थ्रिल इन आवर लाइफ, टू गेट द ड्रीम्स, हमारे जो एक अच्छी ड्रीम लाइफ होती उसको पाने के लिए हमें लिस्ट करना बहुत जरूरी है। सो या दिस गोज विद द थिंग कि हम लोग, आपकी कुछ क्वेरीज होंगी ना वो हम लोग बाद में ले लेंगे। अभी लेट्स रीड द चैप्टर, वो वाला बुक, सेकंड वाला बुक हम लोग पढ़ लेते हैं, मेरा ऑलरेडी 10 मिनट रह गए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड ओवर टू पूनम मैम नाउ। Thank you, Priya. Your sessions are so mesmerizing. Like I was really like enjoying each and every word. And I really want to tell everyone that हमारी प्रैक्टिसेस आज से शुरू हुई हैं। आज से हमने ड्रीम लिखेंगे, कल से हमारी असाइनमेंट्स होंगी। सो यू नो आई हैव सीन हाउ माई लाइफ हैज चेंज्ड। मतलब हम लोग 2 years से कर रही हूँ, और पहले पहले इतना डिलीजेंटली नहीं करती थी, but I came into this journey. But I can't today when Priya was explaining, and yesterday when Deepti ma'am was explaining, I was just मैं पीछे मुड़कर, मतलब I was just remembering how my life has changed when I started this journey, in all aspects of my life, relationship, in my health, how I look, in my finances, where my career is right now, the opportunities I'm getting, the opportunities I got when I came into this journey. And everything, I remember what I was when I started this journey and now what I am. So there is like, it's actually how ma'am says 360 degree का हो जाता है। सो सभी, मतलब अगर हम बोलेंगे ना, अगर हम इंटेंशन रख लेंगे कि हमको ये प्रैक्टिसेस करनी है, सो बिलीव मी, ये नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हम पहले से ही सोच कर रखते ना कि ओ माय गॉड कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे, तो वो कभी टाइम नहीं निकलेगा।
But when we say, that, I do everything in my life easily and effortlessly, जैसे दीप्ति मैम बोलती हैं, तो एक्चुअली इजीली एंड एफर्टलेसली हो जाएगा. हमको कब टाइम मिलेगा हमको पता ही नहीं चलेगा. सो मैंने भी जब से हमारी ये न्यू बुक शुरू हुई है, मैंने भी अपने आप को यही अफर्म करा है कि एवरीथिंग इन माय लाइफ कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली. मतलब नहीं तो क्या होता है कि बस आई सी माई सेल्फ जस्ट रनिंग फ्रॉम हेयर देयर एंड ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. सो और आज का इनफैक्ट जो आज का चैप्टर है टुडे, अभी सेकेंड बुक कर रहे हैं हम, creative visualization for people who are new by Shakti Gawain. Actually what Priya was saying is right कि पहले हम gratitude करते हैं फिर ये करते हैं, तो हमारे लिए तो easy हो जाता है और ऊपर से बहुत strengthen होता है जब हमें पता है कि gratitude क्या है. और जब हम affirmations करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि everything in my life comes to me easily and effortlessly, तो gratitude हो गया. एंड देन जब हम एफर्मेशंस करते हैं तो बहुत मतलब वी रेजोनेट विद इट, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. और आज का तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एफर्मेशंस. अभी तक हमने ये करा था, पीपल हु आर जॉइन न्यू, मैंने देखा था बहुत पार्टिसिपेंट्स कल ज्वाइन करे थे. रियली वेलकम एंड इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि आप दिस जर्नी यू गोइंग टू रियली एंजॉय. अभी तक हमने करा था जितने भी पास्ट चैप्टर्स करे हैं, बहुत अभी ज्यादा नहीं करा है. सो यू कैन इजीली रीड द बुक अभी आराम से, और यूट्यूब में भी आप सुन सकते हैं इसकी मैजिक एंड मिरेकल्स बाय दीप्ति वर्मा. प्रिया कैन ऑल्सो शेयर और हेल्प यू इफ अगर आपको लिंक्स ना मिले तो. वैसे प्रिया रोज शेयर करती भी है कि हम कैसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कैसे विजुअलाइजेशन से हम अपने ड्रीम्स या हमको जो लाइफ चाहिए हम वो कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं. सो एफर्मेशंस क्या हैं? एफर्मेशंस दे आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. तो जैसे हमको अभी तक बताया है कि हमको एक गोल रखना है कि हमको ये चीज चाहिए. मुझे गोल है कि हाँ मेरे पास मुझे ये घर चाहिए, है ना. अब हाउ में तो जाना नहीं है, तो हम उस पर फोकस करेंगे. इमेजिन, पहले हम गोल ढूंढेंगे, गोल अच्छा घर इमेजिन करेंगे कि हाँ मेरा घर ऐसे दिखना चाहिए, एक बालकनी यहाँ होनी चाहिए, उसके आगे प्लांट्स होने चाहिए, अंदर रूम्स इतने बड़े होने चाहिए, किचन ऐसी होनी चाहिए. फिर हम फोकस करेंगे, एनर्जी डालेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हाँ मेरा ये घर है और कैसे मैं मुहूर्त कर रही हूँ और कैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है और कैसे लाफ्टर है मेरे घर में. और जब हम इसके साथ एफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स करते हैं, तो जो भी नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में आती है ना, जब कभी हमारा दिमाग ही कह देता है हाउ इज इट पॉसिबल, अभी तो मैं इतने छोटे से घर में रहती हूँ, या अभी तो मेरे पास फाइनेंसिस ही नहीं है. तो हम चाहते तो हैं पर हम अपने ही सोच से उसको ले नहीं पाते हैं. सो एफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. ये एक तो जैसे कभी कभी कई लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं आती, इमेजिन नहीं कर सकते, तो when we say positive affirmations, we will read how आपको वैसे भी आपके लिए easy हो जाता है अपनी ड्रीम लाइफ के करीब आना. So when I started my career, and I started my career while we were into this journey, मैं उस समय पढ़ रही थी और तुरंत बाद मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी. आई एम अ डाइटिशियन. तो जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट, एक दो तो मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को शुरू कर दिया था, तो दैट वाज नॉट सो, मतलब इट वाज इजी. पर जब मेरे को याद है, मेरा जब फर्स्ट क्लाइंट थे, मैं जब क्लब हाउस में मिलने गई, पूरे रास्ते में अपना ग्रैटिट्यूड वॉक करती गई, और मैं बार बार, जब मुझे मालूम पड़ा एक दिन, मतलब जब से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कल मिलना है, मैं बार बार यही अपने आप को अफर्म करती थी. आई एम सो कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग कम्स टू मी सो इजीली, आई स्पीक द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैंने इतनी बार अफर्म करा है विद दैट व्हेन आई वेंट द meeting, and the person I was meeting was, he was heavily into sports and all, and he had really good knowledge about everything. So and it was not, that time it was not easy for me, but affirmations करने से और इतना confidence आ जाता है, तो it really helps. So आज हम पढ़ते हैं. हाँ जी रीना, please read. हाँ जी. Yeah, affirmations. Affirmations are one of the most important elements of creative visualization. To affirm means to make firm. An affirmation is a strong, positive statement that something is already so. It is a way of making firm that which you are imagining.
Most of us are aware of the fact that we have a nearly continuous inner dialogue going on in our minds. The mind is busy talking to itself, keeping up an endless commentary about life, the world, our feelings, our problems, and other people. The words and ideas that run through our minds are very important. Most of the time, we are not consciously aware of this stream of thoughts, and yet, what we are telling ourselves in our mind is the basis on which we form our experience of reality. Our mental commentary influences and color our feelings and perception about what is going on in our lives. And it is these thoughts form that ultimately attract and create everything that happens to us. Yes, Ina, And just take a yeah, small break. Yeah. So इसमें एकदम बहुत बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली बताया है कि एफर्मेशंस क्या है, टू अफर्म कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, जो भी ये देर ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट. सो क्या होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है. ये मैंने भी अभी रियलाइज करा है कि जब हम सपोज करो हमने ग्रैटिट्यूड कर लिया, हमने कुछ भी कर लिया, पर हमारा माइंड जो है ना, थॉट्स ना, जिसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि सबसे लाइटर होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, तो ये बार बार आते रहते हैं और बहुत जल्दी चेंज हम कर सकते हैं. सबसे बढ़िया बात थॉट्स में ये होती है. पर जब हम नॉर्मल रहते हैं, हमारे थॉट्स तो बहुत आते रहते हैं. सो हम जब भी देखते हैं कि हमारे थॉट्स हमेशा जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कि अच्छा सपोज सुबह कोई बात हो गई, अपने स्पाउस से हो गई, अपने बच्चे से हो गई, घर में कोई स्टाफ से हो गई, किसी से भी हो गई. आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी स्मॉल एग्जांपल. हमारा क्या होगा, हमने सारे कर लिया, हम अपने काम कर रहे हैं, पर हमारा दिमाग हमेशा ये रहेगा, शाम को आएंगे मैं ये बोलूंगी, मैंने ऐसे तो नहीं बोला था, मैंने ऐसे तो नहीं सोचा था, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, दे ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड्स मी, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रही थी, पता नहीं मुझे ऐसा, मैं तो इतना काम करती हूँ फिर भी मुझे ऐसे सोचा जाता है. हमारा माइंड हमेशा हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. या फिर सेकेंड एग्जाम्पल है कि सपोज हमें ड्रीम तो है कि हमें बहुत पैसा चाहिए, पर हम सोचते हैं अभी तो ये बिल पड़ा है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, इसके पैसे देने हैं, कैसे होगा कैसे होगा, हमारा दिमाग चलता रहता है, मैं कैसे पैसे कमाऊं, यहाँ भागूं, इसको कंटैक्ट करूं. मतलब सी, गुड एक्शंस आर राइट, बट जो हमारा नेगेटिवली चलता रहता है ना, कि ओ मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा मुझे इसको भी कॉल करना है, अच्छा मुझे भी कंसल्टेशन भी करनी है, अच्छा मुझे वहां भी जाना है, हाँ मुझे खाने का भी मेन्यू देना है. हमारा माइंड हमेशा चलता रहता है, और आप देखोगे लार्जली वो हमेशा फीलिंग जोन, जो हमारा फीलिंग जोन है, फीलिंग चार्ट है, वो लाइन के नीचे रहता है, कि मतलब वरी, डाउट, मतलब हम परेशान कि हमें ये करना है, ये करना है, वो करना है. सो एफर्मेशंस बहुत ज्यादा, जैसे सपोज करो आपके किसी फैमिली मेंबर से नहीं बनती है, और अभी सपोज आप अपने कमरे से निकले और आपने उनकी शक्ल देखी, सपोज आप उसी विसिनिटी में रहते हो, तो सबसे पहले कहते हो, देखा उसकी शक्ल कैसी थी, अभी भी स्माइल नहीं कर रहा, सबसे पहले हम ये सोचते हैं. पर जब हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और हम कहते हैं थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू, आई एम एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएटेड, हम अपने मन में बार बार ये बोलते हैं. सो हमको रिजल्ट्स भी आगे से मिलता है वैसे ही. सो एफर्मेशन बहुत बहुत, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आप चलो विजुलाइज भी नहीं कर रहे हो, पर अगर आप बार बार एफर्म कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है, जब हमारा कोई ड्रीम है ना, हमको उसको पहुंचने के लिए ही हमारे जो थॉट्स हैं वो ही ब्लॉकेज करते हैं. हम खुद ब्लॉकेज करते हैं अपनी ड्रीम लाइफ को लेने के लिए, या हमको कुछ काम करना है उसके लिए. जब हम अपने पर डाउट करते हैं, हम कहते हैं कैसे होगा, मेरे को तो अभी, मेरे पास, मुझे तो जूम भी नहीं करना आता, मुझे पीपीटी बनाने नहीं आती, मैं कैसे दूंगी प्रेजेंटेशन, पॉसिबल ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ उनको मना कर दूं, अगली बार देखूंगी, अभी टाइम भी कम है. हम ही लिमिट करते रहते हैं अपनी लाइफ में अबंडेंस को लाने के लिए. पर जब हम अफर्म करते हैं, आई कैन डू इट, आई हैव ऑल द मीन्स टू डू इट, आई हैव पीपल हु कैन हेल्प मी, जब हम बार बार अपने आप को ये बोलते हैं, यू विल अट्रैक्ट सिचुएशंस वेयर यू कैन डू इट. पर जब बार बार सोचते हो कैसे होगा कैसे होगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, मना कर देती हूँ, तो आप वही अट्रैक्ट करते हो.
because it is very easy, it is the most easiest thing not to do it and to think कि हाँ ये वो, पर जब आप बार बार अफर्म करते हो तो इसलिए इसमें भी लिखा हुआ है कि कभी हम कॉन्शियस ही नहीं होते सच्ची में। ये तो अब मैं थोड़ा थोड़ा कहते ना, जैसे बहुत थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस होने लगी हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। हमें पता ही नहीं चलता, हमारे थॉट्स कहाँ रेस करते रहते हैं, हम किसी और से बात करते रहते हैं पर हमारा दिमाग भी हम कहीं और रेस करते रहते हैं। सो बार बार मतलब इसमें भी लिखा हुआ है ना कि द वर्ड्स एंड आइडियाज दैट रन थ्रू आवर माइंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्या थॉट्स चल रहे हैं। हमें आप कितनी बार तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। सो और जो हमारे थॉट्स हैं वो ही हमारी लाइफ को वो ही हमारी लाइफ को शेप देंगे। तो आपकी लाइफ जो भी है आप देखिए प्लीज कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। सो इट इज 7। ये हम बस एक पैराग्राफ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, फिर उसके बाद आगे नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी रीना। Anyone who has practiced meditation knows how difficult it can be to quiet this inner mind talk in order to connect with our deeper, wiser, intuitive mind. One traditional meditation practice involves simply observing the inner dialogue as objectively as possible. थैंक यू रीना फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक यू सो मच। सो इसमें बताया है कि आपको अगर पता करना है ना कि आपके थॉट्स कहाँ चल रहे हैं तो आप मेडिटेट करने बैठिए। कितनी बार हम बहुत लोग मेडिटेट नहीं कर सकते, कितनी बार मैंने सुना है, इवन मैं भी इनिशियली मुझे लगता था कि मैं मेडिटेट नहीं कर सकती, मैं अपने माइंड को स्थिर ही नहीं कर सकती। तो जी वन ट्रेडिशनल जो बोला ना मेडिटेशन प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व सिंपली ऑब्जर्विंग द इनर डायलॉग, ये माइंडफुलनेस है, जो माइंडफुल मेडिटेशन इसे कहते हैं कि बेसिकली यू जस्ट सिट एंड यू जस्ट ब्रीथ एंड यू जस्ट लेट द थॉट्स कम एंड गो। उस पर तवज्जो नहीं डालनी है, एज इफ यू जस्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स, यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। So that is why we say that meditation is very important, क्योंकि meditation quietens you। और जब आप मेडिटेशन करते हो उसके बाद जब आप एफर्म करते हो, आपका जो आप जिस पावर से जिस स्पीड से आपको अपनी लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ लीड करनी है, या जिस स्पीड से आपको कोई चीज चाहिए वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये आगे का ये चैप्टर इतना ब्यूटीफुल है, हम कल करेंगे दीप्ति मैम के साथ, एंड देन वी विल, और इसमें इतनी सुंदर एफर्मेशंस हैं। सो विल डू दिस टुमारो, विल कंटिन्यू दिस टुमारो, बट आप लोग आप प्रैक्टिस करिए आज। ऑफ कोर्स हमें ड्रीम तो लिखने ही लिखने हैं, और जब आप ड्रीम लिखें आप प्लीज थोड़ा डीप ब्रीथ करिए। डीप ब्रीथ क्यों करोगे? जब आप डीप ब्रीथ करोगे तो आपका अंदर के जो थॉट्स हैं वो क्वाइटन हो जाएंगे, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सो इसलिए आप लोग डीप ब्रीथ करिए, फिर आप अपने मतलब जो भी, जैसे जॉट डाउन, जैसे प्रिया ने बताया कि जितने भी जो भी आपका ड्रीम है उसको जॉट डाउन कर लीजिए, छोटा छोटा जॉट डाउन कर लीजिए, और आज दिन भर आप वॉच करिए कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। जब भी थॉट नेगेटिव में जाए ना, लोअर द लाइन जाए, डाउट में, वरी में, गुस्से में, इरिटेशन में, बोर्डम में, एक्सपेक्टेशन में, तो तुरंत बोलना ओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर माई हैप्पीनेस। बस या सिर्फ थैंक यू कर दीजिए, एंड देन यू विल सी कि कैसे आपके थॉट्स चेंज होते हैं। So thank you so much everyone for listening to me and Priya both. Thank you. We Thank do, you, and ma'am. thank you Thank you so Nidhi much. and Reena for reading so well, and thank you everyone for giving your precious time. We do have some hand raised. वो मैं बताती हूँ कि कईयों का हैंड रेज था। एक तो आशा जी का था पहले, एक नीरा आपका हैंड रेज्ड है। हाँ जी बताइए। Yeah, मैम I just wanted to ask कि जैसे हमने आज अपना ड्रीम लिखना है तो we have to write it in the simple way, और हमने थैंक यू करके कुछ लिखना है, या सिंपल वे जैसे हमारे दिमाग में आता है? I just want या आप बताइए, क्योंकि आपने मैजिक करा है तो प्लीज आप आंसर करिए। यस मैम। सो नीरा जी, हमने उसको थैंक यू करके नहीं लिखना है आज हमने खाली उनको एक, मैंने बोला ना, बकेट लिस्ट बनानी, सिंपल। आप शॉपिंग करने गए हो, आपने अपनी लिस्ट बनाई कि आपको टूथपेस्ट चाहिए, आपको ब्रश चाहिए, आपको दाल चाहिए, आपको चावल चाहिए,
मतलब ऐसे ही आपने जो भी चाहिए आपको उसको बस एक रफ लिस्ट बनाना है। अभी हमने थैंक यू नहीं लिखना है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग मतलब दिस आई क्वेश्चन। वांट भी नहीं लिखना, आई वांट भी नहीं लिखना ना, कैन यू गिव वन Okay, एग्जांपल? wait, I'll answer that for you. I'll answer that for you. I'll just add Okay, to okay, what Uma. Priya has said. So this is basically if you really want to buy a house, which is like a 3 bedroom, then you just have to say that to buy a house, this thing, to get a job of my dreams, to have a business turnover, to X level or whatever, like dollars or rupees or whatever it is. And two, so two karke likhna hai. So dash, to have this, to have that, to do this, to lose my body fat, to reach my ideal body weight of this much, to improve my vision. So that is how you have to write. And it has to be n number of things that you can think of. It doesn't have to be 10 or 15. It can be like even 25, 30. Because once you have floated it into the universe, then it is gone to the Brahman and then now to get answered, all of them. So even if it is 15, 20, 25, just don't limit yourself. Just think, give time to yourself and think of whatever it is that you can think of, that you would want to have happen in your life. So that is how you have to write it. Just do this, do like that. Okay. Thank you, thank you, thank you. इसमें से filter करना पड़ेगा हमको आगे. मतलब if we have like 25 dream list, then we will need to filter out 10 most important ones, but that comes later. But even these 25 or 30 that you write right now, even these actually come around and they happen in the life. That is how you have to write it today. मतलब ठीक to है? have so and so thing, to have Yeah, to I be want able to to, buy a नहीं, I house, want नहीं yeah, लिखना ना, नहीं, to have I this. want नहीं, to have this, to have that, to go to Greece, to Okay. go to Turkey, to go to Spain, like that. Okay, thank you, Yeah. ma'am. Thank you so All much. right, Thank you, bye-bye. Ma'am, Bye. ma'am, And हिंदी में beautifully explained, Poonam and Priya. I was actually very intently you, listening ma'am. throughout. Thank मैम you, हिंदी thank Thank में you. you. लिखना Thank होगा you तो, so much. मैम हिंदी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जैसे जैसे 4 कमरे का एक घर खरीदना है, मुझे स्पेन और ग्रीस जाना है, और मुझे अपना वजन घटाना है और अपना आइडियल बॉडी वेट 55 या 60 kgs तक पहुंचना है, इस तरह से. दैट इज हाउ इट इज टू बी डन okay, written. thank you, ma'am. Yeah. Okay. And Dipti, what do Bye. you do Morning, with ma'am. your old Have a nice dream journey. list? Yeah, thank you. Journey's already happened. I'm in Thailand only. Oh my God, Wow, you already reached there. Gorgeous. Wow, Yeah, that's good. I've been here. I've been here. It is late. That's why you see this kind of a crowd here. Yes, I So can see yeah, that. because